To summarize your speech or your delivery of statements, because making a policy on theoretical ground, it's very easy, but to implement it practically, it's very tough. Correct. Right, sir? Correct. National Education Forum is also having a mental health department where we conduct courses. When the teachers are there, they also face deviation and normalization every day in school, as the students do. So what do you feel, sir, that teachers, in the teachers training programs of our nation, we need that the teachers must be trained properly in mental health? That's very true. Everybody should have the knowledge of what exactly mental health is. Mental health not that आपने किसी को कह दिया पागल है, दिमाग खराब है, ये नहीं है. In fact, for the children, we require to be all teachers to be trained in how can you judge that the person having problem with the mental health. And वो ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसके लिए आपको कोई कोर्स करना पड़े. That is how you are going to cope up with that situation, which is a teacher need to know. Suppose anybody has problem with anxiety, insomnia, or any sort of disorder which is going to come anytime to anyone, how you can cope up in that situation. So you are saying that it's a self-learning tool? Apart from that self-learning tool, and we have the program which is called the Mental Health at Workplace, which we are Okay, doing. that means small modules of courses, small workshops can help them out? Yes, we are doing with the corporate also, we are doing with the teachers also, we are doing Yeah, with the students wonderful. also. Mental health well-being and cope-up mechanism. Yeah, wonderful, because एक सेंटेंस है कि आज अगर हम अगर ऑफिस में भी बोलते हैं कि आज बुखार है तो आज आई एम नॉट फीलिंग वेल और आई एम हैविंग फीवर, देन ओके यू शुड टेक मेडिसिन, बट आज मेरे मन खराब है तो फिर उसका कोई मतलब ये कोई मतलब nobody is taking that much of care. First of all, you need to be very what to say that Honest about yourself. Honest about yourself, and if you are, it's my own experience what I am speaking, that I have really years passed by, I haven't taken care of like what my heart says, because it's all about responsibilities. When there is a burden of responsibilities, you don't have the time to think about what your heart is really saying. So that's a different part. That's called maturity, I think. And when you are burdened with responsibilities, when you have thousands of answers to give, and there you are answerable to so many questions, then I think this part doesn't come. But yes, we also sometimes feel low. We sometimes feel the fear of failure, as you said. It's there. In fact, it is an emotion. We have the psychology with the emotion which varies and is moved always. Emotions, we always see that कोई खुश है, कोई नाराज है. And one thing I will tell everyone here, the stress is one of the catalyst for having a good life. अगर stress आपके life में नहीं है तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते. But over stress is going to be the disease for that one. So we have to think stress कितना level का होना चाहिए. Thermometer तो आप किसी को थप्पड़ मार दीजिए तो गाल पे लगेगा वो दाग आ गया, लेकिन आप किसी के दिल और दिमाग पर क्या लगा, यू कैन नॉट जज इट. तो दैट इज नॉट अ थर्मामीटर विच कैन जज कि 100 है 200 है, नहीं, ऐसा नहीं. 100 सॉरी 1.2 1.3 है. सो दैट इज ऑल्सो इमोशंस थर्मामीटर विच वी कॉल्ड, कि कैसे इमोशंस इज गोइंग टू कंट्रोल योरसेल्फ. और इसके लिए बहुत ज़रूरी, आज के कोरोना के बाद तो हमने देखा है एजुकेशन में भी, इसलिए हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया था. अभी चल रहा है हमारा मेघालय में माइंड एक्टिवेशन थ्रू एजुकेशन. दिस इज़ फॉर दी 6 to 8 स्टैंडर्ड स्टूडेंट. दिस इज जिसका उम्र 12 से 13-14 के बीच में है, 10 से 14 के बीच में. हाउ टू लेट देम नो अबाउट देयर मेंटल हेल्थ एंड अबाउट द सराउंडिंग्स. जब आप इसको जान जाए, कोरोना में देखिए बोलना नहीं चाहिए, तो सब गवर्नमेंट पॉलिसी. कोरोना में देयर वाज नोबडी वाज नोइंग व्हाट इज द मेडिसिन ऑफ दैट कोरोना. स्टिल इवन आप मिस्टर राय है एम्स डॉक्टर, जो ही वाज द लुकिंग आफ्टर दैट, उन्होंने कहा कि आज तक कोई दवाई निकली नहीं. और हम केवल साइकोलॉजिकली डेथ हुआ है, जितने भी डेथ हुए साइकोलॉजिकली डेथ हुआ है, और उसमें ज़्यादा लोग इसलिए मरे, कोरोना हो गया.
जैसे चाइना वगैरह में, जापान वगैरह, किसी को आप डेथ देते हैं तो वो कहते हैं कि स्नैक बाइट देंगे, लेकिन उसका आंख बंद करके एक पिन गड़ा दीजिए, ही विल डाई। दिस इज कॉल्ड द साइकोलॉजिकल दिस वन इम्पैक्ट। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो वी कैन नॉट टॉक हियर, बट वी वांट दैट आफ्टर कोरोना देयर वाज समथिंग व्हिच हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर द हेल्थ ऑफ ईच एंड एवरी वन। सो ये मेंटल हेल्थ विथ एजुकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल लेवल। So it's the conclusion that comes is that mental health is such a thing which needs to be taken care of, and from age group, from let it be 2 years child, or it's Not 2 years, but because up to, we think that after 4 years we can go for any consultation with the doctors of any child, क्योंकि जो भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है या साइकेट्रिस्ट है वो 4 साल के बाद ही बच्चों को देखते हैं, क्योंकि उस समय तक ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन 4 साल के बाद जो चेंजेज आते हैं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे अभी जो चल रहा है, जिस पर हमारा रिसर्च भी चल रहा है इसमें, दैट इज़ अ गैजेट, मोबाइल। मोबाइल इज़ हार्मिंग एवरीथिंग एंड पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि AI का, जब मैडम बैठी है AI की एक्सपर्ट हैं, यू आर गोइंग इन वॉशरूम एंड बाथरूम, एवरीथिंग इज बीन रिकॉर्डेड, यू आर नॉट नोइंग अबाउट दैट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी दूर तक चला गया कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी, बट हम लोग को लगता है कुछ नहीं है, हम लोग लगता है मोबाइल है, चलाना है। आप देखेंगी मोबाइल इज हमारे पास एक बीमारी हो गई, शायद आप लोग को भी होगा, पॉपकॉर्न सिंड्रोम। है किसी के पास है पॉपकॉर्न सिंड्रोम? कितने लोग हैं जिनको पॉपकॉर्न सिंड्रोम है? दिस इज द वन ऑफ द डिजीज। वो डिजीज है नहीं, लेकिन मानते हैं। मोबाइल कहीं रखा हो, कुछ बजेगा, फट से आप लोग देखोगे क्या है। इन मोबाइल का रिंग आपका कहीं भी कुछ बजेगा, यू विल से दिस इज माय मोबाइल। दिस इज कॉल्ड द पॉपकॉर्न सिंड्रोम। इस पॉपकॉर्न सिंड्रोम को हम लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन टाइम आएगा। एंड आई विल नॉट बिलीव, आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द पेशेंट व्हिच हैज कम टू एम्स, एंड आई एम विद माय फ्रेंड, ही वाज साइकियाट्रिस्ट। उस लड़की का सेल्फी अच्छा नहीं आया, शी वाज ट्राइंग टू सुसाइड, एंड दैट्स व्हाई वी हैव एडमिटेड हर फॉर 3 days। एंड अलग रख के तो हम लोगों ने अब ये भी शुरू कर रहे हैं हम लोग कि हाउ टू गेट द एडिक्शन फ्रॉम द गैजेट्स। और मैं जो भी प्रोग्राम करता हूँ कहीं भी, किसी भी स्कूल में या कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, पहले मैं इसी का देता हूँ कि यू आर सफरिंग फ्रॉम अ बिग डिजीज, दैट इज ए मोबाइल, गैजेट, और बाकी सब तो जनरल है, एडिक्शन जिससे होता है। तो मैं सबको कहता हूँ। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, 10 साल तक के बच्चों को आप सुधार सकते हैं, लेकिन 10 साल के बाद कोई बच्चा हो गया तो इट इज़ गोइंग टू बी डेंजरस फॉर यू इन केस ऑफ मोबाइल। आप 2 साल का बच्चा, आज हमारी मम्मी क्या करती है कि बच्चे को अगर खाना खिलाना, हाथ में मोबाइल दे दीजिए, चल रहा है, छोटा सा बच्चा 6 महीने 8 महीने का भी देखता रहा, खाता रहेगा। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बस हार्मिंग द ब्रेन सेल्स ऑफ द चाइल्ड। लेकिन हमको लगता है नहीं इससे खा लेता है तो कोई बात नहीं है। तो आप क्यों आलसीपना दिखा रहे हो खिलाने में? हमारी अम्मी थी, हमारी माँ थी, थप्पड़ मारती थी, खिला देती थी, अंदर पे रोते रहो चाहे कुछ रहो। लेकिन आज वी आर नॉट सीइंग दैट वन। दादा दादी कह रहे छोड़ दो यार, देख लेते कैसे करते हैं। प्लीज़ अभी से अगर कोशिश करेंगे, हम एक शुरू करेंगे तो शायद इज गोइंग टू बी, वी कैन सेव दी सोसाइटी। वरना ये समय आएगा कि इस मोबाइल के चलते, और आप खुद घर में देख लीजिए, कोई भी बच्चा आपका है, अगर कोई भी बाहर से आ गया तो बैठे बैठे नमस्ते आंटी, हाउ आर यू आंटी, फाइन आंटी, दैट्स ऑल, एवरीथिंग विल बी बाय हैंड, नॉट टचिंग द फीट। So we have forgotten all our things, and this is going to be bad for India. ये होने जा रहा है। बाकी अदर हमारे, I used to go to South East Asia, और मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, जैसे चुलालंका में माइडॉल है, जब मैं पढ़ाने जाता हूँ वहाँ पे मेंटल हेल्थ का भी और जनरल पर्सनैलिटी पे भी, तो those who are not knowing me, they will wish at Sabadikha. See, this is the culture which they are maintaining. लेकिन हम लोग भूल चुके हैं। हम लोग पैर छूना भी गुनाह समझते हैं, अभी बच्चे समझते हैं गुनाह है, इवन पैंट समझते हैं, व्हाई विल टच फिट। इसकी बहुत बड़ी पीछे चीज़ है जिसको हम लोग नहीं समझना चाहते हैं। इंडिया का संस्कार इससे ही चल रहा है, और यही वेद और वैदिक कल्चर है जो कि आज दूसरे ऑप्ट कर रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं। हमें छोटे कपड़े पहनना बहुत अच्छा पहनिए, सब कुछ कीजिए आप, बट यू शुड नॉट लीव योर कल्चर। When we come to this conclusion, we have concluded many important points which we should take care of,
And obviously, our viewers who will be seeing, listening to you, they will be quite motivated by, and they will be understanding a lot of things regarding mental health. Thank you so much, sir, for attending this session. Thank you so much. Thank you. Thank you all. These are the name of the topics beyond the classroom.